Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So today we will study the vector integration, and in vector integration we have to study only Green's theorem, Stokes theorem, and Gauss divergence theorem. So before solving these theorems, we will study in this lecture some definition and some examples on this definition. So first is the line integral. So line integral of a vector function f along the curve AB is defined as the integral of the component f of this vector f along the tangent to the curve AB. So जो हमारा जो लाइन इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर फंक्शन का, अगर हम वो कॉरस्पॉन्डिंग टू किसी कर्व ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये फिगर है, ये हमारे पास कर्व है ए बी, और हमने क्या करना है, हमने इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है इस ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ का. सो वो हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू द और वी कैन से दिस इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट एफ vector along the tangent to the curve AB. तो means integral of the component this f vector along the tangent. Tangent यहाँ पे क्या है, PT. PT is the tangent. So along the tangent to the curve AB, इस curve के corresponding. So therefore component of f vector along the tangent PT at P is given by, वो किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, this is equal to f vector into dr by ds. That is the differentiation of r vector with respect to s. So जो ये dr by ds है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर along the tangent pt. So ये टेंजेंट है हमारा pt, और जो ये टर्म है ये हमारा क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर along that tangent. So therefore line integral is given by the summation then f vector dot d by d, that is derivative of r vector with respect to x. So from A to B along the curve. So therefore we will write the line integral is equal to integral over C and f vector dot dr, that is derivative of r vector with respect to s into ds. So this term will get cancelled, so we are left with f vector dot dr vector. So if this is basically the line integral. Similarly what is the work? So if f vector represents the variable force acting on a particle along the arc AB, then the total work done is given by integral from A to B then f vector dot dr vector. So जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. सिमिलरली सर्कुलेशन किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर f है रिप्रेजेंट्स द जो वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा, सो देन द क्लोज इंटरवल f vector dot this dr vector is called the circulation of f around the curve C. सो जो यहाँ पे इंटीग्रल में जो हमने ये साइन जो ये लगाया हुआ है, इसको बेसिकली कहते हैं क्लोज्ड. मींस ये जो यहाँ पे जो ये हमारे पास कर्व होगी, ये क्लोज्ड कर्व होगी, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल, सो जो फील्ड एफ है उसको हम क्या कहेंगे, वो कंजर्वेटिव, मीन्स उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं हो रही है, मीन्स नो वर्क डन, नो वर्क इज डन एंड द एनर्जी इज कंजर्व. सो उस केस में हम कहेंगे अगर ये इंटीग्रल इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस केस में जो फील्ड एफ है वो दैट विल बी कंजर्वेटिव, मीन्स नो वर्क इज डन एंड द एनर्जी इज कंजर्व. Similarly next is the note, when the path of integration is closed curve then the notation of integration is this term in place of this curve. So means हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई closed curve होगा, जैसे यहाँ पे आप लेके चलेंगे, अगर हमारे पास कोई सिंपल कर्व है तो यहाँ पे उसके लिए हम ये इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, मगर अगर वो हमारे पास मान के चले कोई क्लोज्ड कर्व है, कोई भी हो सकता है, जैसे ये ऐसे करके मान के चलिए कोई क्लोज्ड कर्व है, सो उसके लिए हमने ये वाला क्लोज इंटीग्रल लगाना है. So next is the surface integral. So surface integral of a vector function f over the surface S is defined as the integral of the component of f vector along the normal to the surface. So अब हम किसे कहेंगे कि जो surface integral है, अगर हमें वो किसी भी vector function का निकालना है over any surface, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास कोई surface है और इसका हमने क्या निकालना है, surface integral निकालना है of the vector function f over the surface S.
सो उसमें हमें उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट्स of that vector, that is f vector, along the normal to the surface. So therefore जो कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल इज गिवन बाय, वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर एन, वेयर एन इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एन एलिमेंट डी एस. सो ये हमारे पास जो एन है, ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू एन एलिमेंट डी एस. सो ये हमारे पास जो एलिमेंट है डी एस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर. सो उसको अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इज इक्वल टू ग्रेड एफ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दैट फंक्शन. सिमिलरली ds किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, dx इंटू डी वाई इंटू सम यूनिट फंक्शन ईटा इंटू के. सो देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ f ओवर s, अब जो हमें निकालना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ f ओवर s किस तरीके से होगा, इसका समीशन लेंगे. सो दैट इज समीशन ऑफ f वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर n. और उसको अगर हमें इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, सरफेस इंटीग्रल मीन्स डबल इंटीग्रल. जो डबल इंटीग्रल होता है उसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं. सो देन दिस इंटू एफ वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन इंटू डी एस. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला. जहाँ पे भी आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो नेक्स्ट नोट इज द फ्लक्स. तो अगर ये इंटीग्रल जो हमारे पास है, ये सरफेस इंटीग्रल वेयर एफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स भी कहते हैं. सिमिलरली जो ये इंटीग्रल अगर हमारा जीरो के इक्वल आ जाए, उस केस में जो एफ वेक्टर है उसको हम कहते हैं सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. दिस इज बेसिकली सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. So this is solenoidal vector point function. So next is the volume integral. Volume integral में हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन f है एंड उसका हमें वॉल्यूम भी जो है v है वो एनक्लोज्ड कर रहा है बाय ए सरफेस, जो देन वॉल्यूम इंटीग्रल इज डिफाइंड बाय दिस इंटरवल, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल देन f वेक्टर इनटू dv. सो ये हमें जब भी हमें वॉल्यूम इंटरवल निकालना है, इंटीग्रल निकालना है, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना. सो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. So first example is if f vector is given this term, if we have to evaluate this term where c is the curve in the xy plane and y is equal to 2x square and from this point that is 0 0 to 1 and 2. So एक तरीके से हमें ये क्या निकालना है, ये एक तरीके से वर्क डन है. तो हमें इसका मतलब है हमें इसका वर्क डन निकालना है. हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे हमें लिखना है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे हम इसको. हियर हमारे पास क्या गिवन है, हियर एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3xy इंटू आई माइनस वाई स्क्वायर इंटू जे. सो ऑल्सो हमारे पास जो आर वेक्टर होता है यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है, दैट इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर देन प्लस वाई जे वेक्टर. ओके, जब आर भी हमें पता है क्योंकि ये दो फंक्शंस का है तो इसीलिए मैंने एक्स और वाई लिया है. अगर यहाँ पे तीन फंक्शंस होते तो मैं जेड का टर्म भी लेती. सो दिस इम्प्लाइज, इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे क्योंकि डी आर वैक्टर भी चाहिए हमें यहाँ पे. सो डी आर वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बिकम डी एक्स इंटू आई देन प्लस डी वाई इंटू जे. सो ये हमारे पास भी टर्म आ गई है. देन अब हमें क्या करना है, इस हमारे पास जो कर्व ऑफ इक्वेशन जो दी हुई है वो क्या दी हुई थी, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सो आई विल राइट हियर द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्योंकि हमने वहीं से देखना कर्व, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था कर्व वाज ए बी. सो यहाँ पे जो कर्व गिवन है वो है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सो अब हमें वो कर्व लेके चलना है. द इक्वेशन ऑफ कर्व इज किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सो दिस मीन्स अब हमें इंटीग्रल निकालना है, दैट इज, और वी कैन से दिस वर्क डन, और वी कैन से दिस लाइन इंटीग्रल. सो दिस इज इक्वल टू f इंटू f vector into dr vector. So this is equal to this is equal to integral over c. Now हमारे पास f vector किसके इक्वल है, 3xy i, ये 3xy i इंटू यूनिट वेक्टर i माइनस y स्क्वायर इंटू j. सो ये टर्म्स आ गई. अब हमने क्या करना है, साथ में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास इसकी लिमिट्स भी गिवन है, दैट इज 0 0 और हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म था 0 0 टू 1 2 के बीच में हमें इसकी वैल्यूज़ भी निकालनी है. सो अब ये हम फर्दर लिखते हैं.
एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल था, यहाँ पे नोट करें, लाइन इंटीग्रल था हमारे पास, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व थी हमारे पास, दैट वाज y इज इक्वल टू 2x²। सो इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 4x इंटू डी एक्स। सो मीन्स हमें dy की भी वैल्यू मिल गई है एक तरीके से। तो यहाँ पे आना जो हमारे पास इंटीग्रल था, यहाँ पे ये हमारे पास आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया बिकॉज हमें आई जे को हटा देना है। सो ये हमारे पास आएगा 3xy इंटू डी एक्स माइनस y² इंटू डी वाई। ये दिस इज़ द टर्म, बिकॉज ये हमारे पास dr है। सो dr से जब इसको आपस में मल्टीपल कर देंगे, आई 1 हो जाएगा, सिमिलरली जे भी 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। सो अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सो आई विल राइट हियर, सो दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास अब लिमिट्स बन जाएंगी 0 से लेके 1, देन इट विल बी 3x इंटू वाई। अब y की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास 2x² थी जो भी हमने निकाली, साथ में आएगा dx माइनस ये आ जाएगा 2x² का होल स्क्वायर इंटू 4x साथ में dx। बिकॉज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारे पास जो मेन इंटीग्रल था दिस वाज इक्वल टू 3xy इंटू डी एक्स माइनस y² इंटू डी वाई। और इसमें हमने अभी निकाला था y किसके इक्वल था, जो कर्व की इक्वेशन थी, दैट वाज 2x²। सो वही यहाँ पे अप्लाई किया है, और यहाँ से जो dy की वैल्यू थी दैट वाज 4x इंटू डी एक्स। सो वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर लिया। सो ये आ गया 3x, y की जगह पे आ गया 2x², देन dx, देन माइनस y² हो गया 2x² का होल स्क्वायर, देन 4x dx। सो यहाँ पे y की जगह dy की जगह पे वैल्यू भी इसमें पुट होगी। सो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल 0 to 1, देन इट बिकम्स 2 3 6x³ माइनस इट विल बिकम 16x रेज पावर 5 इंटू डी एक्स। सो अब इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस बिकम्स 6 डिवाइडेड बाई x4/4 माइनस 16 इंटू x6/6, देन द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, सो दिस इज़ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास टर्म्स बन जाएंगी 16 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4। सो बेसिकली इट विल बिकम 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6, देन माइनस टाइम्स 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 माइनस 0। सो यहाँ से जो इसकी टोटल टर्म्स आ जाएगी, वैल्यू आएगी, दैट विल बी माइनस 14 डिवाइडेड बाई 12 एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस 7/6। सो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या हम इसको कह सकते हैं। और आपने सबसे पहले देखना है हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, उसके बाद हमने देखना है कर्व क्या दिया हुआ है, उसके बाद सीधा इंटीग्रल में जो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है वी कैन से उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। So next example is evaluate the volume integral this where dv is the closed region bounded by the slender जो given है slender की जो line that equation that is z is equal to 4 minus x² and the planes x equal to 0, y equal to 0, x is equal to 2, y equal to 2 and z equal to 0। So basically ये सारे जो terms है ये इसके क्या हैं, ये इसकी limits हैं, तो हमने सीधा वो limits में apply कर लेंगे। सो वी विल राइट हियर कि वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इंटू डी वी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्लेन्स भी दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। सो हमें पता है v किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारी टर्म्स हमें पता है, जैसे हमने वहाँ पे r लिया यहाँ पे भी वैसे ही टर्म्स लेंगे। सो इट विल बिकम बेसिकली y इज इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास जाएगा 2 तक। इसी तरीके से हमारे पास 3 स्पेसेस है, 3 लाइंस है। सो नेक्स्ट विल बी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2 एंड थर्ड विल बी z इज इक्वल टू 0 टू 4 माइनस x²। और हमारे पास टर्म है 2x प्लस वाई इंटू डी वी। अब जो डी वी है दैट इज़ बेसिकली डी जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई।
सो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसकी ट्रिपल इंटीग्रल है ये जो, सो यहाँ से सीधा इसका वॉल्यूम निकालना मीन्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो ये इंटीग्रल जो है वो बड़े अपने ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हमारे पास जैसे यहाँ पे टर्म्स क्या है, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया एक टर्म दैट इज़ z का टर्म लिख दिया, तो उसके साथ जो उसका डिफरेंशियल है दैट इज़ dz यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ x के साथ किया तो यहाँ पे dx आएगा। देन लास्ट में मैंने y के साथ लिखा तो इधर dy आएगा। सो अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल y फ्रॉम 0 to 2, देन नेक्स्ट विल बी फ्रॉम x फ्रॉम 0 to 2, देन दिस इज, अब यहाँ पे z की टर्म नहीं है तो dz के इंटीग्रेशन होती है सिंपल z, तो हम लिखेंगे z और इसकी लिमिट्स लगाएंगे z फ्रॉम 0 to, या डायरेक्टली आई विल राइट 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। सो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। So this is equal to integral y from 0 to 2, then next is x from 0 to 2, then it was 2x plus y, और हमें z की वैल्यू हमें निकालनी थी। z की वैल्यू कितनी आएगी 4x स्क्वेयर, बिकॉज इट वॉज, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देती हूँ, z 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई था। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 0 to 2, then it is x is equal to 0 to 2, x is equal to 0 to 2 2x प्लस y, एंड इसको वैल्यूज़ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब इसको फर्दर मल्टीपल कर लेते हैं अंदर और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 then to 2, then it is x equal to 0 to 2, it will become 2x into 4 minus x square plus y into 4 minus x square into dx then dy। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रल y फ्रॉम 0 to 2 इंटीग्रल x फ्रॉम 0 to 2, इट विल बिकम 8x माइनस 2x क्यूब प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई देन dx देन dy। सो अब हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पहले x से, अंदर वाले जो टर्म है उससे लेंगे। सो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 to 2, देन इट विल बिकम, ये आ जाएगा हमारे पास 8x स्क्वेयर बाई 2, तो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 4x स्क्वेयर। देन नेक्स्ट इज, ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स x 4 बाई 4, other term will be 4xy, next term will be minus x cube by 3 into y, और हमारे पास इसकी लिमिट्स है 0 से लेके 2 into dy। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 0 to 2, देन इट इज़, मैं यहाँ पे इसकी सीधी लिमिट्स लगा लेती हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 8 प्लस 8y माइनस 8 बाई 3 इंटू वाई इंटू डी वाई। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रल y फ्रॉम 0 to 2, देन इट इज़ 8 प्लस 16 बाई 3y इंटू डी वाई। सो इसको अब y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8y प्लस 8 बाई 3 इंटू वाई स्क्वेयर, क्योंकि बिकॉज इट बिकम्स y स्क्वेयर बाई 2, सो 2 से 16 को कैंसिल हो जाएगा तो 8 बन जाएगा। सो साथ में 0 से 2 लिमिट्स हो गई। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 32 बाई 3 एंड विच इज़ इक्वल टू 80 बाई 3। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, वर्क डन या वॉल्यूम जब हमें इंटीग्रल निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो थैंक यू।